It was a weary day at Oklahoma's Cameron University. Chuck Hagel, United States Secretary of Defense to be, shocked his audience by stating a fact known in Pakistan for quite some time. India has, over the years, financed problems for Pakistan on that side of the border. And you can carry that into many dimensions. The revelation by Chuck Hagel didn't come as a surprise in Pakistan, for Pakistanis had been suffering at the hands of an enemy which came with a masked face. India's use of TTP fighters against Pakistan was an open secret. India's National Security Advisor, Ajit Dovan, was the first one to admit it. Funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. Then there was the apprehended second-in-command of the TTP itself. He declared, in no minced words, who exactly was collaborating against Pakistan through his organization. दोनों इकट्ठा किया है, इंडिया पाकिस्तान दोनों एक जगह में काम करना है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान की एजेंसी और इंडिया की एजेंसी एजेंसी ने अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के पाकिस्तान में संवेदन कर ये टीटीपी के जरिए मुख्तलिफ जरिए। Commander Kobushan Jadot was yet another living proof of how India kept playing the game of terror inside Pakistan. The various financing which subsequently happened for the TTP and various other Afghan anti-Pakistani terrorist groups led to the attack by TTP on one of the Mehran naval bases, in which a lot of damage was caused to the Pakistani Navy. Now, the links between the terrorist organization TTP and India's premier intelligence agency, RAW, have been made public by no less than the sitting U.S. Secretary of Defense, General James Mattis. The terror spread through this organization has spread flames so high that he has asked India to moderate its support for TTP. Severing relations with TTP will mean India surrendering an active card in Pakistan and a role in Afghanistan. This would also mean a period of relief for Pakistanis who have borne unbearable sufferings at the hands of this Indian proxy. This is the time to call a spade a spade. This is the time to end India's web of terror in South Asia. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाफ़र ब्रोही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम आज बात करेंगे एक शख्स है जिसका नाम है मेजर आर्या। ये शख्स काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ भौंक रहा है, बहुत कुछ करने की कोशिश भी इन्होंने की। ये एक साबका आर्मी का अफसर है, इंडियन आर्मी का, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देता हाथ से जिसमें पाकिस्तान की बदनामी हो या पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह डैमेज किया जा सके। अब इसके बारे में मैं इसको जवाब देने लगा हूँ क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा फजूल बातें की हैं मीडिया के अंदर, जिनका कोई यानी हमारे यहाँ ताल्लुक़ न शिया सुन्नी और दूसरे मसालिक के दरमियान झगड़े। फिर हाल ही में इसने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कि उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी को उन्होंने कत्ल करवाया है, जबकि सब जानते हैं कि खादिम हुसैन रिजवी एक अलालत की वजह से उनका इंतकाल हुआ। खैर, आप लोगों को खुशखबरी ये सुनाऊं कि पिछले काफ़ी अरसे से, तकरीबन कोई 3 से 4 साल थे, चाइनीज़ एजेंसी जो इंटेलिजेंस एजेंसी MSS और ISI ये मिलकर काम कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया की वो रियासतें जहाँ पर आज़ादी के लिए जंग जारी है या स्ट्रगल हो रही है वहाँ पर। और ये बेसिकली ये 7 रियासतें हैं एक तरफ जो कि इंडिया के वेस्ट की तरफ हैं और वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न साइड के ऊपर हैं, और ये जो है इंडिया को कनेक्ट करती है। और ये पतली सी एक लाइन है और उसके बाद फिर एक इनकी 7 स्टेट्स हैं और वो चिकन नेक भी कहा जाता है इनको। तो ये 7 रियासतें, इनमें है अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। बेसिकली ये सारी की सारी जो रियासतें हैं ये अलग अपना वो चाहती हैं।
इंडिपेंडेंस चाहती हैं और यहाँ पे स्ट्रगल भी चल रही है। इसको अब जो है चाइना इसको अब बाकायदा इस कदम उठाने लगा है और ये आप देखेंगे 2021 के अप्रैल और मई के दरमियान कि यहाँ पर चाइना जो है कदम उठाएगा जिससे वो ये कि चिकन नेक को काट दिया जाएगा बकिया इंडिया के साथ और 7 ममालिक हमारे से वजूद में आएंगे। फिर उसके अलावा ये 15 अगस्त 2021 को सिख जो हैं खालिस्तान की जो तहरीक चला रहे हैं वो एक रेफरेंडम करा रहे हैं पूरी दुनिया में और सारे तमाम सिख जो हैं उसमें हिस्सा लेंगे और एक करारदाद पास होगी बाकायदा यूनाइटेड नेशंस में भी जाएगी। और न सिर्फ ये बल्कि आप ये देखेंगे कि इंडियन पंजाब के अंदर भी स्ट्रगल बढ़ती चली जाएगी और इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है इंडिया के ख़िलाफ़ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इन्होंने सिखों ने हमसे इजाज़त मांगी थी कि जी हमें एक ऑफ़िस खालिस्तान का खोलने दिया जाए इस्लामाबाद में पाकिस्तान में, जो कि हुकूमत ने कोई तकरीबन साल से 1.5 साल पहले की बात है ये, तो हुकूमत ने इसको मना कर दिया था उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त है कि हमें जो है वो बाकायदा इनका ऑफ़िस खोलना चाहिए क्योंकि इंडिया ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा रास्ता। उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जिससे पाकिस्तान की बर्बादी हो सकती हो, चाहे वो माशी तौर पर होती हो, चाहे वो टेररिस्ट को जितने भी हैं दहशतगर्द उनकी मदद करके हो। करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने खर्च किया है हमारे ख़िलाफ़। तो वक्त आ गया है कि हम भी खुलकर सामने आएँ, ना कि हम सिर्फ बयानात देते रहें, मज़म्मतें करते रहें और हम बोलते रहें जी वो कश्मीर के साथ ये जुल्म हुआ तो जी उनके सफ़ीर को बुला लिया ऑफ़िस के अंदर और डांट दिया और रुका दे दिया उनको कि ये जी हम इस बात से खुश नहीं हैं, आपने जी सिविलियंस मार दिए। इनफ, आई थिंक इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। वक्त आ गया है कि अब हम जो हैं आप अपना एक बताएंगे हम हैं क्या। अगर हम मतलब ये कि हम हैं ताकतवर, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह हमारी ये जो फ़ौज है दे आर ब्रिलियंट, समझे आप। और इंडिया नहीं ठहर सकेगा, दो तरफ नहीं अब लड़ सकेगा। और जिस वक्त चाइना जो है वहाँ से चिकन नेक को काट रहा होगा तो उस वक्त आप ये देखेंगे कि कश्मीर के लिए भी काम जारी रह हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्दी होगा, आप देखेंगे। तो एक मेरी बात याद रखिएगा कि द नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए भी और वो उन तमाम रियासतों के लिए जो कि स्ट्रगल कर रही हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ कि जी हम वहाँ से इंडिपेंडेंस आज़ादी हासिल कर सकें हम। तो आप ये देखेंगे, मैं आपको एक वीडियो भी अभी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर जो है वो तहरीकें जारी हैं, समझे आप। और आप देखेंगे कि बेशुमार हैं और ये लोग शीशे के घर में रह के और फिर पत्थर हमें मारते हैं जी। बलूचिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं छोड़ते, फिर शिया सुन्नी की बात करते हैं, कभी किसी और मसलक के बारे में बात करते। मतलब ये कि अब हमारे पास इतने सबूत मौजूद हैं, हम दुनिया में भी दे रहे हैं। मेरे ख़्याल में कि अब वक्त आ गया है कि हम इनको सबक सिखाएं। आप मेरी वीडियो देखें और उसके बाद ख़ुद फैसला करें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आइए वीडियो देखते हैं इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। भारत गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने तख्लीक के साथ ही जाहिरियत का मुजाहरा करते हुए ताकत के जोर पर कई आजाद रियासतों पर कब्जा कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। भारत के इसी रवैये के सबब इसकी बेशतर रियासतों में शुरू दिन से ही अलहदगी की तहरीकें चल पड़ी और मजालिम का शिकार अक़लियती अफराद ने हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त भारत में अलहदगी की 67 तहरीकें काम कर रही हैं, जिनमें से 17 बड़ी और 50 छोटी हैं। सिर्फ असम में 34 बागी तंजीमें काम कर रही हैं जो मुल्क के 162 अजला पर मुकम्मल कंट्रोल रखती हैं। शुमाल मशरकी भारत की 7 सिस्टर्स कहलाने वाली 7 रियासतें असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड बागी तहरीकों का मरकज समझी जाती हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी अलहदगी पसंद ग्रुप सरगर्म हैं। लेकिन नागालैंड के नागाबागी और नक्सलबाड़ियों की तहरीक भारतीय वजूद के लिए हकीकी खतरा बन चुकी है और गुज़िश्ता 4 साल के दौरान सिर्फ माओ बागियों के हाथों भारतीय फोर्सेस के 900 अहलकार मारे जा चुके हैं। ये एक ऐसा खतरा है जिसका एतराफ भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह भी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ असम में 34 अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, जिनमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, केमातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बर्छा कमांडो फोर्स, यूनाइटेड लिबरेशन मलेशिया, मुस्लिम टाइगर फोर्स, आदम सेना,
हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद, गोरखा टाइगर फोर्स और पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट शामिल हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में लश्कर उमर, अल बर्क, अल बदर, अल जिहाद फोर्स, तहरीक जिहाद इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा भारतीय कब्जे के खिलाफ सरगर्म है। इसके अलावा पंजाब में बबर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भंडरावाला टाइगर फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, खालिस्तान नेशनल आर्मी, रियासत मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मणिपुर लिबरेशन टाइगर फोर्स, नेशनल ईस्ट माइनॉरिटी फ्रंट, कुकी नेशनल आर्मी, कुकी डिफेंस फोर्स, नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, तरीपुरी में ऑल तरीपुरा टाइगर फोर्स, तरीपुरा आर्म ट्राइबल वॉलंटियर फोर्स, तरीपुर मक्ती कमांडोज, बंगाली रेजिमेंट, मिजोरम में प्रोफेशनल लिबरेशन फ्रंट समेत कई इंतहा पसंद तंजीमें भारत के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। आपने जो वीडियो देखी अब आपको समझ आ गया होगा कि किस कदर वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं आज़ादी के लिए, और ये हमारे लिए, हमारे ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते हैं, बलूचिस्तान में करते हैं, कभी स्कूलों में धमाके करवाते हैं, कभी स्कूलों में कत्ल व गारत करवाते हैं, कभी बाज़ारों में करवाते हैं। तो मेरे ख़्याल में अब वक्त आ गया है कि इनको एक ऐसी चपेड़ मारी जाए कि ये हमेशा मुंह अपना सहलाते रहें और इनको याद रहे कि किससे पाला पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे, ये मेरा ईमान है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।